أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا. اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور ہم ہی اسے وسیع کر رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے قرآن میں ذکر ہونے والی یہ آیت آج سائنس کی سب سے بڑی ڈسکوریز میں سے ایک کو بیان کرتی ہے، ایکسپینشن آف دا یونیورس۔ 1929 میں سائنٹسٹ ایڈون ہبل نے ٹیلیسکوپ کی مدد سے دیکھا کہ یہ گلیکسیز ہم سے دور جا رہی ہیں۔ اس وقت سائنسی دنیا کا یہ خیال تھا کہ کائنات اپنی جگہ پر رکی ہوئی ہے اور ایک اسٹیٹک یونیورس کی شیپ میں موجود ہے، مگر ہبل کی اس دریافت نے اس خیال کو چیلنج کیا اور اس کے تحت ریڈ شفٹ کا کانسیپٹ متعارف کروایا، جس کو ہم ایپیسوڈ 1 میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب لائٹ ہم سے دور جا رہی ہوتی ہے تو اس کی ویو لینتھ اسٹریچ ہو کر الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کے ریڈ اینڈ کی طرف شفٹ ہو جاتی ہے، اور اس ریڈ شفٹ کی 3 اہم اقسام ہوتی ہیں: ڈوپلر ریڈ شفٹ، گریویٹیشنل ریڈ شفٹ اور کوزمولوجیکل ریڈ شفٹ۔ ڈوپلر ریڈ شفٹ میں جب کوئی آبجیکٹ ہم سے فزیکلی دور جا رہا ہوتا ہے تو اس کی لائٹ کی ویو لینتھ لمبی ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ اسی طرح کا ریڈ شفٹ ہے جو ہم نے پہلی بار گلیکسیز میں آبزرو کیا۔ ہبل کا کام اسی ڈوپلر ریڈ شفٹ پر مبنی تھا۔ گریویٹیشنل ریڈ شفٹ میں جب لائٹ کسی بہت زیادہ میسیو آبجیکٹ جیسے بلیک ہول کے گریویٹیشن فیلڈ سے نکلتی ہے تو اس کی انرجی لوز ہوتی ہے اور ویو لینتھ اسٹریچ ہو جاتی ہے۔ یہ ریڈ شفٹ آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی نے پریڈکٹ کیا تھا، جس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے، اور آج کے ماڈرن ٹیلیسکوپ گریویٹیشنل ریڈ شفٹ کو آبزرو کر چکے ہیں۔ کوزمولوجیکل ریڈ شفٹ میں آبجیکٹ خود موو نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اسپیس ٹائم کا فیبرک خود اسٹریچ ہو رہا ہوتا ہے۔ مطلب جب لائٹ ہم تک پہنچتی ہے تو اس راستے کی اسپیس خود بڑھ چکی ہوتی ہے اور اس وجہ سے ویو لینتھ نیچرلی اسٹریچ ہو جاتی ہے۔ ایڈون ہبل نے اپنی آبزرویشن کے لیے ماؤنٹ ولسن آبزرویٹری میں 100 انچ ٹیلیسکوپ کا استعمال کیا۔ اس نے گلیکسیز کی اسپیکٹرل لائنز کو اسٹڈی کیا اور ان کے کنسسٹنٹ ریڈ شفٹ کو نوٹ کیا، اور اس نے دیکھا کہ سبھی گلیکسیز ہم سے دور جا رہی ہیں، اور یہ ایک ریولوشنری ڈسکوری تھی جس نے یونیورس کے اسٹیٹک ہونے کے پرانے نظریات کو چیلنج کیا اور ماڈرن کوزمولوجی کی بنیاد رکھی۔ مگر جیسے جیسے ریسرچ بڑھتی گئی، سائنٹسٹ نے ایک اور عجیب چیز دیکھی۔ 1990s میں سائنٹسٹ نے دیکھا کہ یونیورس میں صرف ایکسپینشن نہیں ہو رہی، بلکہ وہ وقت کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جب اس پہ ریسرچ کی گئی تو اس کے پیچھے ایک پر اسرار قوت کا دریافت ہوا، جسے ڈارک انرجی کہتے ہیں۔ یہ قوت گریوٹی کے اپوزٹ کام کرتی ہے۔ یہ تمام گلیکسیز کو تیز رفتار سے ایک دوسرے سے دور کر رہی ہے اور یونیورس کو کولیپس ہونے سے روک رہی ہے۔ اور ڈارک انرجی نہ تو دیکھی جا سکتی ہے نہ سمجھی گئی ہے، اور یہ ہمارے ہر طرف ہے، مگر ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے۔ جیسے ہوا ہر وقت ہمارے ارد گرد ہوتی ہے مگر نظر نہیں آتی، ویسے ہی ڈارک انرجی بھی ایک انویزیبل قوت ہے جو کائنات کو سنبھال کر رکھے ہوئے ہے، اور اس کا اشارہ بھی ہمیں سورہ الرعد میں ملتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بلند کیا جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یونیورس بڑھتی جا رہی ہے تو کیا اس کا کوئی کنارہ یا کوئی باؤنڈری ہے، یا یہ انفینٹ ہے؟ کچھ سائنٹسٹ انفینٹ یونیورس کو تسلیم کرتے ہیں جہاں میٹر اور اسپیس کا کوئی اینڈ نہیں، لیکن دوسری طرف کچھ تھیوریز ہیں جن کے مطابق یونیورس فائنائٹ ہے لیکن باؤنڈ لیس، جیسے ایک سفیر کی سرفیس ہوتی ہے، یا ہم ارتھ کی ایگزامپل بھی لے سکتے ہیں جس میں آپ کنٹینیوسلی چلتے جائیں تو کسی ایک ایج تک نہیں پہنچیں گے، لیکن ہوگی وہ فائنائٹ ہی۔ سو یونیورس اپنے آپ میں کروڈ ہے، اور اگر کوئی اس سے نکلنا چاہے بھی تو وہ نہیں نکل پائے گا، اور وہ اپنے اسی پوائنٹ پر دوبارہ آ جائے گا جہاں سے اس نے سٹارٹ کیا۔ سورہ الرحمن کی آیت 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے جن و انسان کے گروہ، اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن تم نہیں نکل سکتے مگر ایک خاص اجازت کے بغیر۔
पहले आसमान से बाहर निकलकर दूसरे आसमान में दाखिल होना ये कोई आसान काम नहीं। इस सफ़र में ऐसे रास्ते हैं जिन्हें हम गेट्स या कॉस्मिक पोर्टल्स कह सकते हैं। ये गेट्स हर किसी के लिए नहीं खुलते और इन पर अल्लाह के मुकर्रर फरिश्ते तैनात हैं, और उन गेट्स को सिर्फ वही शख्स या मखलूक क्रॉस कर सकती है जिसको अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिल जाए, क्योंकि ये पोर्टल्स आम एनर्जी से एक्टिवेट नहीं होते। इन्हें खोलने के लिए जिस अमाउंट की एनर्जी दरकार होती है वो ना किसी इंसान के बस में है ना किसी जिन के। आइए अब हम देखते हैं कि ये तमाम आसमान एक दूसरे के साथ किस तरह कनेक्टेड हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह मुल्क में फरमाते हैं, वही है जिसने 7 आसमान तह बतह बनाए। कुरान में जब 7 आसमान का जिक्र आता है तो ये एक लेयर्ड कॉस्मोलॉजी का इशारा होता है। साइंस के थ्रू हम जानते हैं कि हमारी यूनिवर्स या पहले आसमान के अंदर का स्ट्रक्चर रैंडम नहीं है, बल्कि इसमें एक हिरार्की है। गैलेक्सीज क्लस्टर्स में हैं, क्लस्टर्स फिलामेंट्स में, और फिलामेंट्स सुपर क्लस्टर्स के नेटवर्क में जुड़ी हुई हैं। तो जिस तरह पहले आसमान के अंदर का स्ट्रक्चर लेयर्स में ऑर्गेनाइज्ड है, इसी तरह आसमान खुद भी लेयर्स में ऑर्गेनाइज्ड है। इसको अगर हम हदीस की रोशनी में समझें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरी कायनात अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में ऐसे है जैसे एक छोटी सी अंगूठी किसी वसी सहरा में हो, और अल्लाह की कुर्सी उस अर्श के मुकाबले में भी इसी तरह है जैसे अंगूठी एक सहरा में। इसके अलावा उलमा और मुफस्सिरीन जैसे इब्ने कसीर, इब्ने कय्यिम और इमाम अल-ज़हबी ने ये भी बयान किया है कि पहला आसमान दूसरे आसमान के मुकाबले में भी एक अंगूठी की तरह है जो एक बहुत बड़े से सहरा में फेंकी गई हो, फिर दूसरा तीसरे के मुकाबले में और तीसरा चौथे के मुकाबले में। ये सिलसिला 7 आसमान तक जाता है। यानी अगर पहला आसमान जिसमें शामिल तमाम गैलेक्सीज और यूनिवर्स जो अब तक ऑब्जर्व की गई है, अगर उसको एक छोटी सी अंगूठी समझा जाए, तो दूसरा आसमान उसके मुकाबले में एक पूरा सहरा है और वो अंगूठी उस सहरा के अंदर मौजूद है। इसी तरह तमाम आसमान नेस्टेड बबल्स की तरह हैं, जहां हर बबल अपने से बहुत बड़े बबल के अंदर मौजूद है। तो जो यूनिवर्स हमें दिखाई देती है वो सिर्फ पहला पर्दा या आसमान है। इसके बाद कई और हायर डायमेंशनल लेयर्स हैं जिन तक ना हमारी नज़र पहुंच सकती है और ना टेक्नोलॉजी, मगर उनका असर हमारी यूनिवर्स पर हर वक्त पड़ रहा है। सूरह अल-मुरसलात में एक और बहुत इंटरेस्टिंग साइन मिलता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या हमने ज़मीन को समेटने वाली नहीं बनाया? ये आयत ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट का इशारा देती है। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में बताया कि ग्रेविटी कोई पुल नहीं बल्कि स्पेस टाइम के फैब्रिक का कर्व है। हैवी बॉडीज जैसे सितारे और प्लैनेट्स अपने मैस से इस फैब्रिक को मोड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रैम्पोलिन पर या किसी भी शीट पर एक हैवी बॉल रखी हो, तो मैस जितना ज़्यादा होता है कर्वेचर उतनी गहरी होती है, और यही कर्वेचर बनाता है ग्रेविटी। ग्रेविटी हर जिंदा चीज़ के लिए ज़रूरी है। हमारे जिस्म में खून की गर्दिश, हमारे मसल्स और बोन्स की डेवलपमेंट, यहाँ तक कि डाइजेशन के लिए भी ग्रेविटी का होना ज़रूरी है। और सिर्फ अर्थ के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी ग्रेविटी प्रोटेक्शन का काम करती है। जुपिटर जैसे प्लैनेट्स अपनी मैसिव ग्रेविटी के ज़रिए कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स को अर्थ से टकराने से रोक लेते हैं। नासा के मुताबिक अगर जुपिटर की ग्रेविटेशनल शील्ड ना होती तो अर्थ पर ज़िंदगी कई मरतबा ख़त्म हो चुकी होती। ग्रेविटी के बारे में कुरान हमें मज़ीद क्लूज़ देता है। सूरह अल-अंबिया में अल्लाह फरमाते हैं, और वही तो है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को बनाया, ये सब आसमान में इस तरह चलते हैं गोया तैर रहे हैं। 2015 में लीगो यानी लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी ने पहली दफ़ा ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया। ये वेव्स स्पेस टाइम के फैब्रिक में डिस्टर्बेंस का नाम है। जो कोई बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे 2 ब्लैक होल्स जो एक्सेलरेट करते हुए कोलाइड कर जाते हैं या इवन अगर मूव भी करते हैं तो उनकी मूवमेंट से स्पेस टाइम के अंदर रिपल्स पैदा होते हैं जो चारों तरफ फैलते हैं, बिल्कुल इस तरह जैसे समंदर में लहरें बनती हैं। स्पेस की ये डायनामिक नेचर 2015 में डिटेक्ट हुई, लेकिन कुरान 1400 साल पहले ही ये फैक्ट बता चुका। लेकिन ये स्पेस टाइम जिसके बारे में हम मुसलसल जिक्र कर रहे हैं, ये आखिर है क्या? आइंस्टाइन के मुताबिक स्पेस और टाइम अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये दोनों मिलकर एक 4 डायमेंशनल रियलिटी बनाते हैं जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। हम जैसे किसी जगह का पता लैटिट्यूड,
लॉन्गिट्यूड और आल्टीट्यूड से देते हैं, वैसे ही किसी भी इवेंट को स्पेस टाइम में डिफाइन करने के लिए हमें 4 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, 3 स्पेस के यानी x, y, z और 1 वक्त का यानी t। इसका मतलब हर चीज़, हर वाकया सिर्फ कहाँ हुआ नहीं बल्कि कब हुआ वो भी उसका हिस्सा है। और जैसे हम मूव करते हैं एक स्पेस के अंदर, वैसे ही हम वक्त में भी मुसलसल मूव कर रहे होते हैं। हमारी मूवमेंट वक्त में एक डायरेक्शन में कंटिन्यूसली हो रही होती है। स्पेस और टाइम की नेचर को मज़ीद समझने के लिए हम आइंस्टाइन की एक और थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी को देखेंगे, जिसके 2 बुनियादी असूल हैं। पहला, अगर एक बंदा बगैर किसी रुकावट के स्पीड से मूव कर रहा है और एक स्टिल खड़ा हुआ है, तो फिजिक्स के सब लॉज मूव करने वाले के लिए सेम वैसे ही काम करेंगे जैसे रुके हुए शख्स के लिए कर रहे हैं। और दूसरा ये कि लाइट की स्पीड हर किसी के लिए सेम होती है, चाहे कोई लाइट के साथ उसकी स्पीड से भाग रहा हो, उसके ऑपोजिट भाग रहा हो या साइड में खड़े हो। ये 2 सिंपल प्रिंसिपल्स पूरी कायनात की सूरत हाल को बदल के रख देते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक सुपर फास्ट ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं जिसकी स्पीड ऑफ लाइट के करीब है और आप ट्रेन के अंदर एक बॉल से कैच खेल रहे हैं, तो आपके लिए बॉल का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल है जैसे ज़मीन पर होता है, क्योंकि फिजिक्स के तमाम लॉज, मोशन, इनर्शिया, ग्रेविटी सब वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे आम हालात में करते हैं। ये ही स्पेशल रिलेटिविटी की पहली इंसाइट है कि फिजिकल रूल्स उन सब के लिए एक जैसे हैं जिनकी मूवमेंट कांस्टेंट है। लेकिन अगर आपका दोस्त उस ट्रेन के बाहर किसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो उसको आपकी क्लॉक आहिस्ता चलती हुई नजर आएगी। उसके लिए आपका वक्त स्लो हो गया है। ये कोई इल्यूजन नहीं, ये असल में वक्त का बिहेवियर है। वक्त ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। जिस शख्स की स्पीड लाइट की स्पीड के करीब होती है तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है, क्योंकि स्पेस और टाइम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि लाइट की स्पीड हर ऑब्जर्वर के लिए कांस्टेंट रहे। चाहे वो रुका हुआ हो, हरकत में हो, लाइट की स्पीड बदलती नहीं, बल्कि वक्त और डिस्टेंस उसके मुताबिक तब्दील होते हैं। सेकंड ये कि अगर कोई हायर डायमेंशन में है या इवन ऐसी जगह पर है जहां ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है जैसे ब्लैक होल के करीब, तो उसके लिए भी टाइम स्लो हो जाता है। और इसका रीज़न स्पेस टाइम की फैब्रिक का कर्वेचर है, क्योंकि ब्लैक होल की एक्सट्रीम ग्रेविटी स्पेस टाइम को इतना डिस्टॉर्ट और कर्व कर देती है कि टाइम वहां बहुत स्लो हो जाता है। इसी को कहते हैं टाइम डिलेशन। और टाइम डिलेशन वही कॉन्सेप्ट है जो हमें सूरह सजदा की 5वीं आयत में मिलता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वही है जो आसमान से ज़मीन तक हर काम का इंतज़ाम करता है, फिर वो काम एक दिन में जो तुम्हारी शुमार के मुताबिक 1000 साल के बराबर है उसकी तरफ साऊद और रुजू करता है। इसी तरह अगर आप उसी सुपर फास्ट ट्रेन के अंदर एक फ्लैश लाइट चलाएंगे तो शायद आपको लग रहा हो कि लाइट बीम की स्पीड ट्रेन की स्पीड के साथ ऐड होकर बढ़ जाएगी, मगर नहीं। आइंस्टाइन के एक्सपेरिमेंट्स इसे साबित करते हैं कि लाइट की स्पीड हर शख्स के लिए बराबर है, चाहे कोई उस सुपर फास्ट ट्रेन के अंदर हो या उसके बाहर। हर किसी के लिए लाइट की एक ही स्पीड है जो कि 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड है। इसीलिए वो लोग जो उस ट्रेन में होंगे उनके लिए सब कुछ नॉर्मल होगा, लेकिन अगर उसी ट्रेन को आप बाहर से देखेंगे तो उस ट्रेन के अंदर सब कुछ स्लो नज़र आ रहा होगा और ट्रेन छोटी नज़र आएगी डायरेक्शन ऑफ मोशन में, क्योंकि टाइम के साथ साथ स्पेस भी डिस्टॉर्ट होती है जब स्पीड इंतहाई तेज़ हो जाती है। टाइम के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में हमें फरमाते हैं, कुल्लू शैइन फ़ी किताबिन मुबीन, यानी हर चीज़ एक वाज़ेह किताब में दर्ज है। यानी लोहे महफूज में हर वक्त, हर लम्हा, हर डायमेंशन ऑलरेडी लिख दिया गया है और एक साथ मौजूद है। साइंस की ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी हमें वक्त की इस सूरत को समझने में मदद करती है जो ये कहती है कि हम ब्लॉक यूनिवर्स के अंदर चल रहे हैं, जहां पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ मौजूद हैं, लेकिन इंसान उन्हें आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस करते हैं। और इसका मतलब ये कि वक्त लीनियर नहीं बल्कि एक फ्रोजन फ्रेम है। इसी लोहे महफूज में इस कायनात का इख्तिताम भी लिख दिया गया है और इसी इख्तिताम के बारे में साइंस की कुछ लेटेस्ट ऑब्जर्वेशंस हैं जो डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए सामने आई है। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसे डार्क एनर्जी के असरात को मैयर करने के लिए बनाया गया था। इसके डेटा से पता चला है कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन अब उतनी तेज़ नहीं रही, एक्सेलरेशन अब स्लो होती जा रही है और डार्क एनर्जी का असर भी अब कम होता जा रहा है।
اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو ایک وقت آئے گا جب گریوٹی جو کہ ہر جگہ موجود ہے دوبارہ ڈومینیٹ کرے گی. ہر چیز، گلیکسیز، سٹارز، اسپیس ٹائم، سب کچھ واپس ایک جگہ گرنے لگیں گے، جسے سائنٹسٹ بگ کرنچ کہتے ہیں. سورہ تکویر کی پہلی اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت، یعنی جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے. اسی طرح سورہ الانفطار کی پہلی اور دوسری آیت میں بھی اللہ فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، یعنی جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے بکھر جائیں گے. یہ سب قرآن کے وہ سائنس ہیں جسے اللہ نے انسان کے لیے چھوڑ دیا تاکہ وہ خود تحقیق کرے اور یہ فیصلہ کرے کہ کیا یہ سب بغیر ایک الٹیمیٹ ڈیزائنر کے ممکن ہو سکتا ہے. اور ہم مسلمان ہیں جن کے پاس المصور کی لکھی ہوئی کتاب موجود ہے، وہ کتاب جو کائنات کی ہر ایک راز کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے. لیکن افسوس، ہم ان نشانیوں پر خود پردہ ڈال چکے اور تحقیق چھوڑ چکے ہیں. ہم میں سے ہر ایک شخص کے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنا وقت اس مقصد کو دیں اور خود قرآن اٹھائیں اور تحقیق شروع کریں اور ساتھ ہی ساتھ اسے تمام انسانیت تک پہنچائیں.